Good morning, dear children. Now I am going to explain the second chapter of Democratic Politics, Federalism. Overview. In the previous chapter, we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies. In this chapter, we focus on this form of power sharing and it is most commonly referred to as फेडरलिज्म. पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा मीन्स वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है ना. दिस इज one of the major forms of power sharing in modern democracies. In this chapter, we focus on this form of power sharing. तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे और इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है. It is most commonly referred to as federalism. We begin by describing federalism in general terms. इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. और इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट में, इस अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है. A discussion of the federal constitutional provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा. अध्याय के आखिर में towards the end of the chapter we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism. तो अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे. ओके डियर चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज and the next topic. What is federalism? संघवाद क्या है? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. तो आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करते हैं. आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए. Belgium and the regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी. The change that took place in 1993 was that
the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. तो सन 1993 में या 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं थीं। तो thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government। तो इस तरह से अब बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली यहाँ पर। तो the Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Sri Lanka continues to be for all purposes a unitary system where the national government has all the powers. श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। And Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. अब जो श्रीलंका के तमिल लीडर्स चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. तो यहाँ पर फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें कि शक्ति का बंटवारा हो जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और कहाँ पर जो इसकी बहुत सारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, इसकी जो इकाइयाँ होती हैं। यूजुअली ए फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से इसमें आमतौर पर 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, 2 levels of government, and usually a federation has 2 levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. तो एक जो है इसमें से एक स्तर की सरकार पूरे देश के लिए होती है फॉर द इंटायर कंट्री एंड जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं एंड द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के रोजाना के कामकाज देखती हैं, प्रतिदिन का एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं। Both these levels of governments enjoy their power independent of the others. तो सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करती हैं, स्वतंत्र होकर के अपना काम करती हैं। Now dear children, let's come to the next page. In this sense, federations are contrasted with unitary governments. तो इस सेंस में, इस अर्थ में फेडरेशंस जो है संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से एकदम विपरीत है ना। द फेडरेशंस आर contrasted with unitary governments. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government.
एकात्मक व्यवस्था में, यूनिटरी गवर्नमेंट में शासन का एक ही स्तर होता है ना। जो शासन है उसका एक ही लेवल होता है और बाकी की जो यूनिट्स होती हैं, बाकी की जो इकाइयाँ होती हैं उसके अंदर काम करती हैं, उसके अधीन होकर के काम करती हैं। The central government can pass on orders to the provincial or the local government. अब इसमें जो केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर्स पास कर सकती है प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को। बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। But in federal system, the central government cannot order the state government to do something. State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी शक्तियाँ होती हैं, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वो केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है ना। State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government, and both these governments are separately answerable to the people. ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं, लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं, जनता के प्रति answerable होती हैं। Let us look at some of the key features of federalism. तो आइए हम संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं, इन पर गौर करते हैं। There are 2 or more levels or tiers of government. तो एक जो पहला फीचर है फेडरलिज्म का वो क्या है, पहली विशेषता फेडरलिज्म की क्या है, यहाँ पर सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। There are 2 or more levels of government. And the second feature of federalism is different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। The different tiers of government govern the same citizens. पर कानून बनाने, कर वसूलने, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। एंड द थर्ड फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और tiers of government are specified in the constitution. जो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं, उनके जो भी जुरिस्डिक्शंस हैं तो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए जो भी so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व को प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. तो इस तरह से संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। And the fourth feature of federalism is the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. तो जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हम कह सकते हैं कि संविधान के जो मौलिक प्राविधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती।
The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government, and such changes require the consent of both the levels of government. ऐसे बदलाव, ऐसे changes दोनों ही स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं. Now let's come to the fifth feature of the federalism. Courts have the power to interpret the Constitution and the powers of different levels of government. The highest court acts as an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है. वो जो कोर्ट्स होती हैं उनके पास ये शक्ति होती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो एक्सप्लेन कर सकती हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकती हैं, संविधान की व्याख्या कर सकती हैं. एंड द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अधिकारों के विवाद की स्थिति में अगर कोई भी उनके राइट्स को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, किसी भी तरह का विवाद होता है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है ना. तो ये एक अंपायर का रोल प्ले करता है यहाँ पर. नेक्स्ट फीचर इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, है ना, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए वो क्लियरली स्पेसिफाइड है ताकि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर किया जा सके, वित्तीय स्वायत्तता को निश्चित किया जा सके. इसके लिए जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं. सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जो है उनको क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है. नाउ नेक्स्ट एंड सेवेंथ फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम is the federal system thus has dual objectives. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय शासन व्यवस्था है, इसके दोहरे उद्देश्य हैं, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं. देश की एकता की सुरक्षा करना, टू सेफगार्ड एंड promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. और इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करना. तो therefore two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. तो इस तरह से इस कारण संघीय व्यवस्था या जो फेडरल सिस्टम है उसके गठन को कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, है ना. टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. विभिन्न स्तरों की सरकारें जो हैं उनके बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. और इस तरह से उन दोनों को ही कुछ एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. तो इस तरह से
आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों ही पक्ष होते हैं, है ना, दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, आपसी भरोसा, आपसी विश्वास और साथ रहने पर सहमति कि हम एक साथ रहेंगे। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. तो केंद्र और विभिन्न सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। जो एग्जैक्ट बैलेंस है ना, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट varies from one federation to another, and this balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. तो ये बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed, and there are two kinds of routes through which federations have been formed. तो यहाँ पर दो तरीके हैं, दो रूट्स हैं जिनके माध्यम से, जिनके थ्रू फेडरेशंस को फॉर्म किया गया है। The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. तो पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, है ना, कि जहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स को एक साथ लाया जाता है ताकि वो एक बिगर यूनिट फॉर्म कर सकें, एक बड़ी इकाई बना सकें। एंड द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. तो इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ में रखते हैं, अपनी सॉवरेंटी को पूल करते हैं और इसके साथ साथ अपनी अलग अलग पहचान को भी वो बनाए रखते हैं और इस तरह अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता तय करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, है ना, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। तो इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं यूजुअली दे हैव इक्वल पावर और वे केंद्र के जो है यहाँ पर स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर कमिंग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। और केंद्र के अपेक्षा, है ना, केंद्र जो है वो ज़्यादा, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा वो पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के अपेक्षा। द सेकंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। अब जो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है
बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, और फिर इसके बाद राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, है ना, कि जहाँ पर एक बड़ी कंट्री ये डिसाइड करती है कि वो किस तरह से अपनी पावर्स को डिवाइड करेगी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में और इसके साथ साथ जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके बीच में। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके उदाहरण हैं। तो इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विद द स्टेट्स। Very often, different constituent units of the federation have unequal powers. Some units are granted special powers. तो यहाँ पर जो है ये जो दूसरी सेकंड कैटेगरी है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है ना। ये दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों जो राज्य हैं, है ना, उसकी अपेक्षा केंद्र सरकार यहाँ पर ज़्यादा ताकतवर होती है राज्यों से। और अक्सर इस व्यवस्था में जो अलग अलग राज्य हैं, विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर कुछ विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो कुछ यूनिट्स जो हैं, है ना, उनको स्पेशल पावर्स ग्रांट की जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं यूजुअली उनकी जो पावर्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग भी होती हैं उनकी तुलना में। ठीक है, अब जो स्टेट्स हैं यहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो अक्सर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं फेडरेशन में, जो इकाइयाँ होती हैं, उनकी पावर्स अनइक्वल होती हैं, समान नहीं होती हैं। कुछ यूनिट्स जो हैं उनको कुछ विशेष पावर्स भी ग्रांट की जाती हैं। Now here in the glossary you can see the meaning of jurisdiction. Jurisdiction means the area over which someone has legal authority. एक कार्य क्षेत्र जिस पर कि किसी को कानूनी अधिकार होता है। And the area may be defined in terms of geographical boundaries, the area may be defined in terms of geographical boundaries or in terms of certain kinds of subjects. तो एक ऐसा दायरा जिस पर कि कोई वैधानिक अधिकार हो, कानूनी रूप से अधिकार हो, और ये जो एरिया है, ये जो दायरा है ना, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। एक जोग्राफिकल बाउंड्री में ये डिफाइंड होता है, या कि इसके अंतर्गत कुछ सब्जेक्ट्स को भी रखा जा सकता है, जैसे कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं, है ना, उनको भी, वो भी इसके अंदर आते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज एंड नाउ लेट्स रिवाइज ऑन द नेक्स्ट पेज। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको एक बार उसको रिवाइज कर लेना है आपको। तो some Nepalese citizens were discussing the proposals on the adoption of federalism in their new constitution. तो कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। They were discussing the
proposals on the adoption of federalism in their new constitution. And this is what some of them said. और उनमें से कुछ लोगों ने क्या कहा, वो किस तरह से चर्चा कर रहे थे, वो इस तरह से था. खगराज, I don't like federalism. It would lead to reservation of seats for different caste groups as in India. तो खगराज क्या कहते हैं, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा. इससे क्या होगा कि इससे रिजर्वेशन होगा सीट्स का. सरिता क्या कहती हैं, आवर्स इज नॉट ए वेरी बिग कंट्री, वी डोंट नीड फेडरलिज्म. हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या ज़रूरत है. बाबूलाल क्या कहते हैं, आई एम होपफुल दैट द तराई एरियाज will get more autonomy if they get their own state government. बाबूलाल का कहना है, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी, है ना. तराई एरियाज विल गेट मोर ऑटोनॉमी. Now Ram Ganesh, I like federalism because it will mean that powers that were earlier enjoyed by the king will now be exercised by our elected representatives. अब राम गणेश का क्या कहना है, ये कहते हैं कि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे. If you were participating in this conversation, what would be your response to each of these? Which of these reflect a wrong understanding of what federalism is? What makes India a federal country? अगर आप इस conversation में, इस चर्चा में शामिल होते तो हर रिस्पॉन्स पर या हर टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, आपका रिस्पॉन्स क्या होता, और इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है ना. तो इस पर आप इसके बारे में सोचिए और जो भी आपका आंसर होता है उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए. ओके, नाउ लेट्स stop the topic. We will continue our next topic in our next class. Okay, dear children, thank you very much. Thanks a lot.